So here we go to begin the proceedings of the second game between Bhumika 11 Khanka and Shri Sports Devbagh. Was a chance there. Maybe if we had taken a start, could have been a chance in the backward point region. And start was not taken, and that's the reason why this catch was not able to be converted by the. And that's the second ball, a dot ball bowled here, back of length. So a decent start. Especially you have to start with good length and good line. Whether the batsman is going to hit you for 6 or boundaries is a different aspect. But you got to start well in the first 2 balls of any new game. This time down the leg side should be a wide, and they might be looking for a overthrow there. It was not there. So one more the team here from Bhumika 11 Khanka Goa, and the second team from Devbagh. So one from Sindhudurg, one from Goa. Once again the previous game was won by the team from Goa. This time in the air, and this chance is good effort by the fielder. He got his right hand, almost could have clipped onto it, but just popped out of his hands. Another single. So 3 on the board. So not the best of the start. So Darshan Manikar will definitely come down lower in the order. He likes the ball to get a little lower, and a little comfort zone somewhere around the 4th or 5th position is a very comfort zone for the team. So bowling order from Mahabaleshwar has started decently at the moment. Just conceding 3 runs of the first 3 balls. And this team of Bhumika 11, they are growing at the moment, growing in stature in tennis ball cricket in Goa. Not only relying heavily on Rajat Kuralkar, yes, he is their superstar, he is their mainstay, but other players around also contribute pretty decent with bat and ball. Once again trying to drive outside, another wide. He's trying to be away from the zone of the hitting zone of the batter. He's trying to bowl somewhere right outside the off stump, and in doing so he's bowling outside the guideline. Batsman trying to drive the ball, playing and missing, but he gets the wide in return. Was that a chance? No, just inside the guideline. Rajat Kuralkar standing in front behind the wickets. He knows that the batter is trying to go down the ground and try to take the advantage of the fielding restrictions, trying to go the aerial way, maybe using the crease as well. So another one. Once again they're getting the little edges there, little edgy at the moment. No convincing shot, loose throw, absolutely loose throw. What was that all about? There was absolutely no pressure from the batters to take the second run. He just pushed the throw above the head of the fielder and gets the second runs. In fact, gives the second run. Just like the toss has been gifted by Shri Sports Devbagh to Bhumika 11 Khanka, because they reached late on the venue. And that's very good to see from the organizers. They abided by the disciplines. You don't arrive on time, the toss won't be given to you. It is forfeited to the opponents. Was that a chance? But it's difficult. It's very difficult when keeper is standing so much of in front. These outside edges, inside edges. This ploy of keeper standing in front is not to allow the batter to go down the track. So end of over number 1 is 7 without loss. Shri Sports Devbagh.
बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में महाबलेश्वर पढ़ते। मेरे ख्याल से पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर था उस ओवर में 3 मौके लगभग निकले थे विकेट कीपर के लिए। जब थोड़ा सा जो कि क्लोज विकेट कीपिंग करते तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है, लेकिन टोटली 3 मौके निकले थे। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। टॉस जीता भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम ने, फील्डिंग करने का फैसला और सामने बल्लेबाजों को मौका दिया श्री स्पोर्ट्स देवबाग मालवण क्रिकेट टीम को। किरण डोरी और उन्हीं के साथ विकी फर्नांडिस, ये लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये जोड़ी मैदान पर 2 स्टार खिलाड़ियों के बीच में यह बिल्कुल जंग देखने को मिलेगी मैदान पर। एक ओर से जो कि गोवा का स्टार खिलाड़ी रजत कुडालकर, तो सिंधुदुर्ग का बिल्कुल कोहिनूर जिसे कहते हैं वो दर्शन बांदेकर इस मैच के साथ। काफी दर्शक इस मैदान पर। और इसी बीच नया ओवर, छोटी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन। दूसरा ओवर जो पावर प्ले का ओवर, रजत कुडालकर की चर्चा हम कर रहे थे और दर्शन बांदेकर की, और वही रजत कुडालकर आ चुके। खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर और स्कोर बोर्ड पर 7। थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर। ओवर पिच इस बार लॉफ्टेड शॉट वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। शॉट बिल्कुल वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला बड़ा शॉट और स्कोर पहुंचा 13 रनों पर। बैकफुट पर कट के इस बार गेंद फिर से थोड़ी सी हवा में, कवर पॉइंट पर फील्डर, और इस बार बहुत ही बेहतरीन कैच है। थोड़ा सा दूर से खेला था इस बार इस गेंद को, और पहली सफलता मिलती हुई भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम को। स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे के बाद न्यू बैटर गणपत कांदळगावकर मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 13 पर। रजत कुडालकर ने एक ब्रेक तो दिलाया, एक सफलता दिलाई अपने टीम को। खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2024 सर मंदार मोहन पोके और उनकी पूरी ऑर्गेनाइजर टीम, बहुत ही एक सुंदर आयोजन। कल पहला दिन रहा ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम जो सेमीफाइनल में, और आज दूसरा दिन चलता हुआ। छोटी गेंद घूमकर मारना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन चौकर नहीं निगाह बिल्कुल अंपायर की। अपील जरूर था लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं लगे थे। 13 रन पर स्कोर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का 7 ओवर का मैच है। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले। ये तेज गेंद बैकफुट पर, बल्ले का मुंह खोला, बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बाद 17 पर पहुंचा, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट पर। जोरदार बल्ला घुमाया था, फिर से अपील, भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। रजत कुडालकर इस ओवर में दूसरा धक्का देते हुए श्री स्पोर्ट देवबाग मालवण क्रिकेट टीम को। स्कोर बोर्ड पर टोटल 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे बगल में बिल्कुल आप जो कि संपर्क जरूर कर सकते हैं
नींबू सोडा, नींबू शरबत है, कलिंगन है, ये बिल्कुल सही दामों पर यहाँ पर उपलब्ध है, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में। और दर्शन बांदेकर आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। 17 रन 2 विकेट पर 2 ओवर पावर प्ले का खेल मैदान पर समाप्त हुआ और तीसरे ओवर खुद का दूसरा ओवर लेकर महाबलेश्वर पड़ते एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर। So same ends here for Mahabaleshwar and we will be bowling to the left-hander. 2 wickets taken by Bhumika 11. That's heaved away, that's heaved away, there is a fielder, but he just watches the ball sail over his head for a beautiful 6 runs. Welcome to Mahabaleshwar into his second over with that pick up on the leg side and 23. Now the fielding restrictions have eased off a bit for the bowler. Once again, this time he didn't time it. There's a fielder there and he goes straight in his hands. Taken, and that's the end of Vicky as well. So a wicket here for Mahabaleshwar, 3 going down and Shri Sports Devbag are a little bit struggling at the moment at 23 for 3. So in comes the new batter, Mahendra Dhuri. So Darshan Banekar is fresh onto the wicket, not faced a single ball, and Mahendra as well, just coming onto the wicket, will be on the striking end. Pretty good at the moment from the bowlers and fielders. Bhumika 11, Kanka, if they can restrict this strong batting team of the Sports Devbag to somewhere around 80, 90, I think they will fancy the chances chasing later on. They started well. They started well by picking up 3 wickets. They need to continuously pick up wickets, and especially of the big man who is standing tall at the non-striker's end. Ah, lovely ball. Beaten in defenses. No clue whatsoever. The ball pitched in the right area, just shaping away, and beaten him in defenses. And a lovely delivery. And that shows that the bowler is in good form. He is bowling in the right areas. He bowled a very good first over, and now once again he comes up in the second over, picks up a wicket, and bowls a dot ball to the new batter. This is just chipped. This is just chipped in the air. Oh, lucky there, absolutely lucky the batter. He didn't power it. If he had chipped it with little bit of power, it could have gone straight in the hands of the fielder. So just a mere punch, gets a single down the ground, moves the score to 24. And here is Darshan Bandekar, the superstar of his team, Devbag Malwan. He is facing the first ball of Khendir Boys Morji. Short ball, and you can see that first ball is struggling with his run-up. I don't know whether there is some injury niggle at the moment that's hurting him. Maybe somewhere in some game, some tournament. He's playing regular in this season, continuously in big tournaments, and made himself available to play here for Khendir Boys Morji. He loves to play in Goa, and people of Goa also love to watch him. That's in the air. Has he timed it well? I think it's just gone high, gone high, gone high, and gone the distance as well. Gone the distance. First, everyone thought, even the fielder thought that he is in a contention of the race of taking the catch, but he was not. The ball sails over him for a wonderful drive for 6 runs.
That marks the end of 3 overs. Is 31 for the loss of 3 wickets. So good drive here, lofty drive from Mahindra Dhuri, getting him 6. 31 for the loss of 3. So pretty decent. They're going at around 10 runs per over, and now is going to be the pink ball. Let's see who is taking the pink ball in his hands. It's not going to be easy for any bowlers around with the introduction of pink ball. Kendir Boys Morjim Champs 2024 are the first team to invent this pink ball, and it will be a revolution. It will be a revolution in Goa if this goes interesting. Certainly something new which is being watched by tennis ball cricket lovers, not only in Goa but also in Sindhudurg and Maharashtra as well. So let's see how it goes. And Rajat Kudalkar, normally he is a pretty good top batter. He is known for his batting prowess, but as far as the bowling is concerned, he can be very street smart. So this is going to be a very, very important over for both the sides. Darshan Bandekar with the bat in his hand. Oh, started off well. Started off well. I think it was a little slow leg cutter here bowled by Rajat Kudalkar. He's a street smart cricketer. You can consider him as a batter, but he can definitely bowl those cunning overs. Once again, this is a big appeal, big appeal, big appeal. Not from the umpire. Not of saying yes. And that was a signal. This is beautiful bowling. You can see the ball dipping onto the batter. Darshan first thought that it's a full toss ball, but the ball dipped down at the last moment and gets rid of the most dangerous man, the big fish. Darshan Bandekar departs on just a single. I still remember the international cricket when we used to see Sachin Tendulkar bowling those crucial overs for India, getting some fifers as well, getting crucial breakthroughs, 1 or 2 wickets, changing, breaking the partnership. Saurav Ganguly as well, many of times in seaming conditions. And also persons like Hensi Crony or Mark Waugh or Steve Waugh used to bowl those crucial overs in between in one-day internationals and getting some important breakthroughs. Rajat Kudalkar is similar to that. Godwin, the batsman, this should be a chance. Oh, just away from the left hand. He stretched his arm to take that catch, but Rajat has bowled really well in the right areas and he's getting little swing as well. Tennis cricket is also showing you the replays as well, how the ball is swinging. Little bit of swing is there with this pink ball, little heavier than the yellow ball. As once again just chipped in the air, should be a chance. Taken. Oh, it's dropped. Oh my gosh, goodness gracious me. He has almost grabbed it and then given it away. He can't believe himself, can't believe the luck. But the batter is saying thank you very much for keeping me still on the crease. This should have been just swallowed, not taken. Swallowed by the fielder over there, just like a bubble gum. Didn't take it. Didn't take it at all. 33 at the moment. And Rajat, you can see the best part about Rajat is he's releasing the ball. So when he's releasing the ball, he is releasing from the fingers, and that's the reason why he's getting little bit of swing here. Sometimes some bowlers are hit hard deck bowler, and they are banging the ball onto the wicket somewhere around 6 meters away from the batter. But Rajat is trying for swing, and he's getting a little swing there. Sensible bowling from the all-rounder. This time bowling is short down the leg side, and easy boundary here for the taking. But I still rate him a 4-star out of 5 after getting rid of not only Darshan Bandekar but pretty economical over here from this bowler Rajat Kudalkar. So end of over number 4. Pink over gone is 37 for the loss of 4. Shri Sports Devbag.
मेलबर्न ड्यूबा क्रिकेट टीम पिछला मैच 93 का टारगेट बिल्कुल रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम ने आसानी के साथ चेस किया था। 7 ओवर का मैच है और कम से कम एक 80-90 के आसपास जाना पड़ेगा इस मैच में। कल जो इनाम जारी था, एक बार फिर से जानकारी सभी टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, अगर 3 लगातार छक्के लगाते हैं तो आपको 1000 रुपए, हैट्रिक अगर मुकम्मल करते हैं तो 2000 रुपए, और ये इनाम रखा है खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स जिनके ओर से इनाम जारी है। 3 चौके लगातार 1000 और 3 छक्के, माफ कीजिए 3 छक्के के लिए 1000 और विकेट हैट्रिक के लिए 2000। इसी बीच 5वां ओवर सामने से शुरू होने जा रहा है। देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं बॉलिंग मार पर दूर वाले छोर से। धनेश आउटे दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए, और सामने अगर दर्शन बांधे करके आउट होने के बाद रनों की सख्त जरूरत है। एक बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी हवा में बिल्कुल देखने को मिली गेंद जो कि मिड स्टंप पर, और सामने पा गए बिल्कुल स्टंपों के। आड़े बल्ले से खेला इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, और जब तक विकेट कीपर जाते गेंद को फील्ड करते तब तक एक तो सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा इस सिंगल के साथ 38 रनों पर। बहुत अच्छी शुरुआत की महाबलेश्वर पड़ते ने गेंदबाजी में, आज उनका स्पेल भी बहुत अच्छा रहा गेंदबाजी का। सामने लॉब किया इस बार, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। टेनिसक्रिकेट.in के सर गौरव सावंत से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर, कितने दर्शक जुड़ चुके हैं गोवा और सिंधुदुर्ग के इस मैच के साथ? 4000 से भी दर्शक ज्यादा जुड़ चुके हैं। इस बार बाहरी किनारा, गेंद थोड़ी सी हवा में निकली थी स्लिप पर, लेकिन मौका नहीं मिला। एक सिंगल बन गया स्कोर में, और इस 1 रन के साथ 45 पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट पर। जो उपस्थित दर्शक है आपका स्वागत है, और जो टेनिसक्रिकेट.in से खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स के साथ जुड़ चुके हैं 4000 से भी ज्यादा दर्शक, दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। मैं अशोक नाइक और मेरे साथ सर हरीश काकोड़कर। छोटी गेंद इस बार देखना होगा ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन उतनी तेजी के साथ आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, जब तक विकेट कीपर के हाथों में एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। धनेश आउटे गेंदबाजी कर रहे, मैदान पर खेल जारी है। 5वें ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी मैच का बाकी है। ओवर पिच गेंद ऑफ साइड पर, थोड़ा सा ज्यादा रूम बनाकर खेलना चाहते थे, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर खेला इस बार, स्क्वायर लेग पर, फील्डर है, देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन एक ही रन मिलता हुआ। तो आगमन हो चुका है यहां पर दर्शकों में सर उप सरपंच आदरणीय सर पवन मोर जी, जिनका आगमन हो चुका है। सर आपका स्वागत है। आपसे सर रिक्वेस्ट है, आइए प्लीज आप वीआईपी स्टैंड में तशरीफ रखें। उप सरपंच सर पवन मोर जी, जिनका आगमन हो चुका है। सर आपका स्वागत है खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स प्रतियोगिता में, और आपसे रिक्वेस्ट है आप आइए प्लीज मंच पर, वीआईपी स्टैंड पर आप आकर तशरीफ रखें। इस बीच और एक ओवर का खेल, 5 ओवर समाप्त हुए, और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 47 लॉस ऑफ 4 विकेट। So 2 overs from Mahabaleshwar, 2 overs from Rajat. Dhanesh also bowls a pretty good over, and in comes Prajot. And the batsman was shuffling outside, but still it was outside the guideline. Wide called by the umpire. Prajot starting with an extra. So they've got a pretty orthodox field here. 3 men on the leg side, 2 on the offside in the deep covers and long off vision. Rest all the fielders inside. Starts it. Oh, that's a biggie. That's a biggie there. Right off the screws and right out of the ground.
So that's exactly what the doctor ordered here for Shri Sports Devbag. They need big sixes at the moment. Run rate and best of the strike rate from the previous batter, but this is a good shot. As once again, little Fuller trying to play it on the leg side, swing and a little fumble, and getting the second run quite comfortably in the end. A little bumpy outfield here, and that will happen to most of the fielders. If you are not alert, if your reflexes are not quick, then you are definitely will be put under the pressure, under the pump by the batters for an extra run. That's the one extra that has been taken here. This time another one on the leg side, might be looking for a couple of runs. Long part, big part of the field coming from square leg towards the backward square leg region. 2 runs taken. So this has been a good over. Every ball has been counted. 11 coming of the first 3 balls, and Godwin is doing a good job at the moment. He's got 2 sixes, a boundary. Godwin is playing on 23 of just 10 balls and a strike rate of more than 200, which is considered pretty good in tennis ball cricket. So Godwin is playing a godly innings here for Shri Sports Devbag. They need sixes, they need somewhere around 85 plus, and that's what they are targeting, banking on Godwin. This is India. This will be a chance, going to be a difficult chance. Fielder comes, but it's dropped well in front of him. And a good throw, but completes the second run once again. Godwin. This is almost the 3rd time the couple of runs has been taken. So 3 couples will add 6 runs plus the 6 as well. 13 coming of the first 4 balls so far. So they are going after Prajot. They have no options left. They have to target one of the bowlers, and they are certainly targeting Prajot at the moment. 60 the score. Lovely shot, lovely pickup shot on the leg side, and just swing it away, and swings with some timing. 6 runs to add to the total of Godwin and team. Shri Sports Devbag, the costly over has come through the courtesy of Prachot. This is wrong. This is not the way you bowl. You don't have that much of pace to trouble Godwin, and Godwin pulls it away with a powerful pull shot for 6 runs. That's the 3rd 6 in this over, and takes the score leaping away, leaping in front, leaping on top to 72 after completion of 6 overs. 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और हरीश सर, मैं कहूंगा जो काम दर्शन बांदेकर को करना चाहिए था वो बल्लेबाजी गॉडविन कर रहे हैं मैदान पर। दर्शकों का पूरे मनोरंजन। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 72। लेकिन पिच बहुत अच्छा है। पिच क्यूरेटर को तो दाद देनी पड़ेगी। अच्छा बैटिंग विकेट है, जिस विकेट पर कल के सुबह के सत्र में 95 रन, कल शाम के दौर में 114 का टोटल, आज सुबह का टोटल था 93 रनों का, लेकिन 93 रन भी इस 7 ओवर में बना चुके। तो मैं कहूंगा कितने भी रन बनाए, शायद आप बिल्कुल इस विकेट पर, मैं नहीं कहूंगा आपसे, पे देखना होगा। आखिरी ओवर एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैदान पर गॉडविन। अंतिम ओवर का खेल, और इस आखिरी ओवर में सामने से बॉलिंग बार पर दिखा देते हुए अनुकूल। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत। समीर पांडे का आगमन हो चुका है। आखिरी ओवर चलता हुआ मैदान पर, और स्कोर हो चुका है 72 टोटल। और इस बार एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर गेंद चली गई, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे आगे बढ़ा 78 रनों पर।
और इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट 6 रन के लिए। क्या तोड़फोड़ की बल्लेबाजी हो रही है। दर्शन बांदेकर बिल्कुल सस्ते में लौटे। एक अच्छा विकेट चटकाया था रजत कुडालकर ने, लेकिन गॉडविन के साथ यह खिलाड़ी मैदान पर लड़ रहा है। 8 गेंदों में 37 रन। बिल्कुल ये जो स्लॉग ओवर की हम चर्चा कर रहे थे, एक बार लग रहा था कि 60 बनते हैं या नहीं श्री स्पोर्ट देवबा क्रिकेट टीम, लेकिन अब ठीक ठाक दिखाई देती हुई। लेकिन बैटिंग विकेट है। 114 का कल सुपर ओवर का मैच, कल सुबह का मुकाबला 85 का, आज का पहला मैच 93 रनों का टारगेट चेस हुआ है। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है। थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि 2 गेंदों पर 2 लाजवाब छक्के लग चुके हैं, तो बल्ले गेंदबाज पर प्रेशर रहेगा ही। वाइड बॉल के साथ 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। खेलना चाहते थे, रन के लिए निकले, रनआउट का खतरा शायद मेरे ख्याल से नहीं निकलना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के लगा चुके थे और पूरे लय में थे, टच में थे, और इसी बीच में एक सफलता मिलती हुई 5वां विकेट चला गया मैदान पर। डीजे और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, गौरव राहुल। तेरह गेंदों में 37 रन बनाकर गॉडविन, एक बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। सामने इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, कॉर्नर पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। आखिरी ओवर 7वां ओवर, 7 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का खेल। चौथा ओवर जो पिंक गेंदबाज, पिंक कलर की गेंद आपको मिलेगी, जो और एक पावर प्ले का ओवर। सामने लपके इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गैप में कमाल की फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग। 2 रन कम से कम बचाए अपने टीम के लिए। हल्का सा अपील स्क्वायर लेग के अंपायर के और रनआउट के लिए विकेट कीपर का इशारा, और देखा जाएगा क्या हुआ। अगर रनआउट हुए तो 1 ही रन मिलेगा, सेफ है तो 2 रन मिलेंगे। और टेनिस क्रिकेट .in की बिल्कुल सहायता ली चुकी है। देखा जा रहा है क्या हुआ वहां पर, यह रनआउट या बल्लेबाज सेफ है अपने पॉपिंग क्रीज में। अगर सेफ है तो मिलेंगे 2 रन, नहीं तो 1 विकेट के साथ 1 ही रन मिलेगा। श्री स्पोर्ट सेफ है, बिल्कुल है, इशारा अंपायर का साथ, जो कि सेफ है तो 2 रन मिल गए, और इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर 88। 88 रन टोटल। लास्ट बॉल टू गो, 7वें ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। एक मिस टाइम शॉट और विकेट कीपर के हाथों से कैच छूटा। आज भूमिका 11 कांडका की थोड़ी सी मैं फील्डिंग की चर्चा करूंगा। आज फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, कम से कम 3 या 4 कैच आज मैदान पर छूटते हुए देखने को मिले। इसी बीच सिंगल बन गया स्कोर में, और इस 1 रन के साथ 7 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ। टॉस जीता भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम ने। फील्डिंग करने का फैसला श्री स्पोर्ट मालवण देवबा क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया। टोटल 89 यानी 89 रन, और टारगेट है 90 रनों का। 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का खेल। चौथा ओवर रहेगा जो 30 यार्ड सर्कल के भीतर सभी फील्डर होंगे। पिंक कलर की गेंद गेंदबाज को दी जाएगी। सामने रजत कुडालकर है, अनुकूल है, वेदांग है, धनेश आवटे है। बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम की। आज दर्शन बांदेकर थोड़ा सा फिट नहीं है, बिल्कुल जब दौड़ते हुए देखा था तो बिल्कुल कुछ ना कुछ परेशानी उनको देखने को मिल चुकी थी। लेकिन गेंदबाजी है, देखना होगा किस तरह से मुकाबला होता है दोनों के बीच में। जैसे मैच शुरू होगा, कमेंट्री बॉक्स में एक बार बड़े लंबे अरसे के बाद जुड़ जाते हैं हमारे साथ समीर पांडरे माइक्रोफोन पर।
2024 पॉवर बाय मंदार मोहन पुके सर. भव्य दिव्य अशी क्रिकेट स्पर्धा. आज या स्पर्धेचा एकंदरीत दुसरा दिवस व महत्त्वपूर्ण लढत या ठिकाणी खेळली जाते ती म्हणजे भूमिका 11 कांडका विरुद्ध सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रतिभाशाली संघ म्हणजे श्री स्पोर्ट्स देवबाग संघ. आज खऱ्या अर्थानं देवबाग क्रिकेट संघाकडनं अपेक्षा होती धुव्याधार फटकेबाजांची, कारण दर्शन बांदेकर एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज हा त्यांच्या गोटामध्ये निश्चितपणे होता. मात्र दर्शन नाराज करतोय आणि दर्शनने जरी नाराजी केली तरी दर्शनची नाराजी क्षणिक ठरवत या ठिकाणी उर्वरित साथीदार गॉडविननं बहारदार अशी कामगिरी करत 90 धावांचं लक्ष हे ठेवलं जात आहे. दर्शन बांदेकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. उजव्या एष्टी बाहेरचा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट. एक देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप पॉईंट सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी होतोय व चौकारानं महत्वपूर्णरित्या या ठिकाणी भूमिका 11 कांडका क्रिकेट संघ खातं खोलतोय. पर्यायानं रजत कुडाळकर हा फलंदाज या ठिकाणी खातं खोलताना दिसतोय. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये ज्या फलंदाजला एक वादळ असं म्हटलं जातं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी क्रिकेट स्पर्धा देवगड येथे संपन्न झाली होती त्या स्पर्धेमध्ये शतक वैयक्तिक झळकवण्याचा मान ज्या रजत कुडाळकरनं पटकावला होता. या वर्षीच्या क्रिकेट मोसमात बऱ्यापैकी फॉर्ममध्ये असलेला रजत यावेळी ब्लॉक हॉलमधील चेंडू योग्य सन्मान दिला जातोय. चेंडूचा प्रवास मिड ऑफच्या दिशेनं व जोपर्यंत मिड ऑफला क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती होते. एकेर धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पळून पूर्ण करतायत. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. बिनबाद 5 धावा. निर्धारित 7 षटकांचा सामना आणि 7 षटकांमध्ये आवश्यकता तब्बल 90 धावांची विजयासाठी ही अर्थातच भूमिका 11 कांडका क्रिकेट संघाला. डावखुराचा धनेश या ठिकाणी मैदानावर सज्ज होतोय. पॉवर प्लेची पहिली 2 षटकं राहतील. त्यानंतर 1 षटक हे पिंक बॉल षटक म्हणून गणलं जाईल. डावातील 4थं षटक. च्या षटकामध्ये सर्व खेळाडू हे सर्कलच्या आतमध्ये. सुरेख असा चेंडू हलकेच टोलवला जातोय. चेंडूचा प्रवास शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 6 धावांवर. अनेक प्रेक्षकांची तौबागर्दी निश्चितपणे या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण अनुभवतोय आणि याच प्रेक्षक वर्गांमध्ये ध्रुव स्पोर्ट्स पारसा गोवाचे मॅनेजर मुन्ना दाभोलकर यांचं आगमन या स्पर्धेदरम्यान होताना दिसतंय. आम्ही शब्दसुमनानी मुन्ना दाभोलकर आपलं स्वागत करीत आहोत. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये चेंडू आखरी टप्प्याचा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्णत्वास नेले जात आहेत. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह धावसंख्या 6 धावा. खेळ समाप्त होतोय तो 4 चेंडूंचा. दर्शन बांदेकर लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू मिड ऑफला टोलवला जातोय. चेंडू टोलवता क्षणी एकेरी धावेसाठी दिलेली 7 रजतची प्रतिसाद मिळतोय तो धनेशकडनं. एकेरी धाव सहजगत्या पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेरी धावेने 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 7 धावा. धावफलकावर पहिल्या वेळेला षटकाची सांगता करण्यासाठी थोडीशी शारीरिक तंदुरुस्ती काहीशी आजच्या दिवशी कमी दिसते ती दर्शन बांदेकरची. तो दर्शन बांदेकर आपलं पहिलं षटक संपवण्याच्या प्रयत्नात सज्ज होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये उंच फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येत झेल टिपतोय आणि जो फलंदाज बाद व्हावा ही अपेक्षा होते श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट संघाची ती सफलता धनेश याच्या स्वरूपात दर्शन बांदेकर प्राप्त करतोय. एका कड्याच्या मोबदल्यात 7 धावा धावफलकावर 30 आहे. दिव्य आयोजनात कालपासून सुरुवात होते आणि या स्पर्धेचा आनंद लुटण्यासाठी या भव्य दिव्य अशा व्यासपीठावर मांजरम या ठिकाणी मोरजिम गावचे सरपंच सन्माननीय श्री मुकेश कडेकर, उपसरपंच सन्माननीय पवन मोरजे, पंच मेंबर सन्माननीय फटी शेटगावकर, माजी पंच मेंबर सन्माननीय मंदार पोके, तसेच या ठिकाणी सन्माननीय प्रकाश बागकर, सन्माननीय प्रभाकर बांदेकर, सन्माननीय चंदन शेटगावकर, सन्माननीय आशिष कडेकर, सन्माननीय दामोदर सावळ, सन्माननीय संदेश जी, सन्माननीय सुशांत शेटगावकर, सन्माननीय किरण परब आणि सन्माननीय संतोष संग्रे यांची वर्णी ही मान्यवरांच्या मान्यवर कक्षात शब्दसुमनांनी सर्व मान्यवरांचं या स्पर्धेदरम्यान आम्ही मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. जाऊया सामन्याकडे. डावातील दुसरं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी याची मोहरणी होते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय तो विकी.
पहिला चेंडू स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडूची गती ही पारखण्यात कमी पडतोय. तो फलंदाज रजत, बाकीचे सोपस्कार यष्टिरक्षक दर्शन याच्याद्वारे पूर्णत्वास नेले जात आहेत. निर्धाव चेंडू गणला जातोय, पण निर्धाव चेंडू अखेर विजयी उद्दिष्ट 90 धावांचं आणि 90 धावांचा पाठलाग करताना 1 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 7 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी, हा गोलंदाज सज्ज. परत एकदा सुरेख असा चेंडू, लेमन कट पद्धतीनं चेंडूचा प्रवास घडत होता आणि यष्टिरक्षक दर्शन बांदेकरची चुणूक पहा. यष्टी मागे या ठिकाणी स्वतः शारीरिक तंदुरुस्त नसतानाही देखील एक अद्वितीय असा झेल टिपतोय आणि रजत कुडाळकरला मात्र स्वस्तात हे माघारी परतावं लागतंय. एका चौकाराच्या सहाय्यानं वैयक्तिक 6 धावांवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 धावा. दुसरं षटक या डावातील प्रगतीपथावर मैदानावर गोलंदाज विकी याच्या कर्वे. खरं तर अशा उन्हाची तमा न बाळगता क्रिकेट हेच जीवन मानत या ठिकाणी खिंडीर बॉईज मोर्जिम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024च्या निमित्तानं अनेक मातबगार संघ या ठिकाणी फिरताना दिसत आहेत आणि याच ग्रंथिकेत या ठिकाणी आजचा दिवस हा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थानं गाजवला जातोय. तो सिंधुदुर्ग जिल्हा विरुद्ध गोवा राज्यातील तगड्या संघ यांच्या मुकाबल्याने प्रथम फलंदाजी करताना 89 धावा आणि पाठलाग करताना 90 धावांचा. दुसऱ्या षटकात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 धावा. बाद होऊन रजत मैदानाच्या बाहेर जातोय. रजत बाद झाल्यानंतर वेदांतवर निश्चितपणे जबाबदारी असेल आणि ज्यावेळी जबाबदारी वेदांच्या खांदी येते त्यावेळी त्यांनी समर्पकरित्या ती व्यवस्थितरित्या निभवली आहे आणि तोच वेदांत मैदानावर जातोय. अर्थातच प्रितेशच्या साथीनं संघाचा डाव वाढविण्यासाठी 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 धावा धावफलकावर. पंच अमेय नाईक यांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी हा सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू फटका हवेत राहतोय. चेंडूचा प्रवास हा निश्चितपणे डीप लॉंग ऑन सिमर्सच्या पलीकडे होतोय व एका उत्तुंग षटकारानं या ठिकाणी आपल्या डावाची सुरुवात हा फलंदाज वेदांत करताना दिसतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला सावध गतीचा तो इशारा देतोय. या षटकारानं दुहेरी आकड्यात परावर्तित होते धावसंख्या. ते अर्थातच या ठिकाणी भूमिका 11 कांडका क्रिकेट संघाची 90 धावांचा पाठलाग करताना 13 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सफलता प्राप्त गोलंदाज या ठिकाणी फिकी हा सज्ज. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू हवेत उडतोय. स्वतः परतीचा झेल टिपण्यासाठी विकीची पावलं चेंडूपर्यंत पोहोचतायत. अप्रतिमरित्या झेल टिपला जातोय व एक मोठा फटका मारल्यानंतर आशेची जी किरण पल्लवित केली होती तो धष्टपुष्ट बांध्याचा वेदांत यावेळी नैराश्याच्या घोर वातावरणात झेलचित होऊन विकीची शिकार बनत मैदानाच्या बाहेर जातोय. तिसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात 3 गडी बाद 13 धावा डीजे. डाव कोलमडून टाकतोय. 2 सफलता या षटकात प्राप्त करतोय व संघाचा डोलारा सावरण्यासाठी डावखुरा हाताचा फलंदाज अजय याची वर्णी ही लागते. या 2 फलंदाजांना मैदानावर राहावं लागेल. आपल्या संघासाठीचं कार्य पूर्ण करावं लागेल. दुसऱ्यापासून विकी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडूचा या ठिकाणी स्क्वेअर कटच्या फटक्यात टोलवायचं होतं. प्रयत्न फसतोय. यष्टिरक्षक बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी आपल्या सफलता प्राप्त षटकाची सांगता करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं हा सज्ज होतोय. 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर पॉवर प्लेचं हे षटक गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी हा गोलंदाजी करताना दिसतोय. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न झाला होता. प्रयत्न फसतोय. यष्टिरक्षक दर्शन बांदेकर सोपस्कार पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू गणल्यानंतर 2 षटकांचा खेळ समाप्त व 7 षटकांच्या सामन्यामध्ये आघाडीच्या 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज 13 धावा धावफलकावर 90 धावांचा पाठलाग करताना म्हणजे अजूनही तब्बल 77 धावांची गरज येऊन टेपते व 5 षटकांचा खेळ हा शेष. प्रथम फलंदाजी करताना निश्चितपणे श्री स्पोर्ट्स देवबा क्रिकेट संघाकडनं निराशा झाली.
दर्शन बांदेकर स्वस्तात केवळ एकेरी धावेत तंबूत परतला. 4 गडी स्वस्तात तंबूत परतल्यानंतर 50 गाठतोय की नाही श्री स्पोर्ट्स देवबा क्रिकेट संघ असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यानंतर मात्र फलंदाजी मार्कवर फलंदाज महेंद्र आणि गॉडविन ही जोडी जमते. या जमलेल्या जोडीनं अक्षरशः धुलाई केली ती कानका क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांची. परिणाम आपण पाहतोय 7 षटकांमध्ये 89 धावा, 90 धावांचं लक्ष आणि 90 धावांचा किल्ला गाठण्यासाठी सलामीला जे फलंदाज उतरलेत ते नैराश्यानं मैदानाच्या बाहेर या ठिकाणी बाद होऊन परतलेत. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या 13 धावा, 2 षटकांचा खेळ हा समाप्त. गोलंदाजी मार्कवर कोणताही बदल दिसत नाही. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो अष्टपैलू असा खेळाडू दर्शन बांदेकर. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघासाठी महत्वपूर्ण या ठिकाणी 3रं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय व निश्चितपणे सामोरा जाईल तो फलंदाज प्रितेश. हा मैदानावर गोलंदाज दर्शन बांदेकर याच्या गोलंदाजीला. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. चेंडूचा प्रवास शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. बहुधा चेंडूने प्रथमतः बॅटला स्पर्श केला, त्यानंतर पॅडला स्पर्श करतोय असा इशारा. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. ज्या एकेर धावेने खातं खोललं जाते ते प्रितेश याच्याद्वारे स्वतःचं व या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 14 धावांवर. 14 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 90 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी भूमिका 11 कानका क्रिकेट संघ निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. क्षेत्ररक्षण रचना सजवली जाते कारण पॉवर प्लेची बंदी ही क्षमते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज दर्शन बांदेकर सज्ज होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. फॉलो थ्रू मध्ये साधा सोपा झेल टिपला जातोय. अजयची खेळी नाम मात्र 0 धावाची. म्हणजे भोपळा फोडण्यात त्याला समर्थता काही प्राप्त होत नाही, ती समाप्त होत. एकंदरीत 4था हादरा भूमिका 11 कानका क्रिकेट संघाला. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात नाम मात्र 14 धावा या धावफलकावर. कालच्या दिवशी अक्षरशः धावांचा पाऊस या मैदानावर पडला होता. आजही सकाळच्या सत्रात 93 धावांचं लक्ष हे लिलया पार केलं होतं. त्यामुळे 90 कानका क्रिकेट संघ सहज पार करेल असं प्राथमिक चित्र या ठिकाणी व्यक्त केलं होतं. कारण रजत कुडाळकर सारखा मोहरा त्यांच्या गोटामध्ये. मात्र दुसऱ्या बाजूनं दर्शन बांदेकर कमाल करतोय. त्याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा श्री स्पोर्ट्स देवबा क्रिकेट संघ गोलंदाजीचा स्तर उंचावतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये क्षेत्ररक्षक त्यांच्या कामगिरीला साथ देत आहेत आणि परिणाम आपण अनुभवतोय. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 14 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज महादेव याची वर्णी ही लागते. महादेवला थांबावं लागेल, आपल्या संघाची पडझड ही रोखावी लागेल. आणि दुसऱ्या बाजूने दर्शन बांदेकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. उजव्या बाहेर जाणारा चेंडू हलकेच टोलविण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडूचा प्रवास ठरवायचा होता तो थर्मॅनला, मात्र प्रयत्न फसतोय. यष्टिरक्षक बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय. एका निर्धाव चेंडू अखेर परत एकदा दर्शन बांदेकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंच अभि तळेकर यांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करण्यासाठी हा सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू वेगवान करण्याचा प्रयत्नात या ठिकाणी शरीरवेधी चेंडू फेकला गेल्याचे संकेत या ठिकाणी मिळत आहेत. पंचांकडनं पंच सक्त ताकीद देत आहेत की शरीरवेधी गोलंदाजीचा प्रयत्न गोलंदाज तू करतोयस. परत जरी शरीरवेधी गोलंदाजीचा प्रयत्न झाला तर तुझी गोलंदाजी ही नकारात्मक ठरविण्यात येईल. वाईड बॉलचा इशारा. 1 अवांतर धाव धावफलकावर. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये स्लोअर वनचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करत षटकाराच्या दिशेनं आगेकूच करतोय व एका उत्तुंग अशा फटक्याने तब्बल 6 धावांचं योगदान मिळते ते फलंदाज महादेवला. महादेव षटकारानं स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाची पडझड तो 21 धावांपर्यंत नेऊन ठेवतोय. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 3रं षटक या डावातील प्रगतीपथावर. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूची गती कमी केली होती आणि गती कमी केलेली पारखतोय तो फलंदाज महादेव. उत्तुंग अशा फटका टोलवतोय तो डीप स्क्वेअर लेगला षटकारासाठी. पण या 6 धावांनी 21 धावा धावफलकावर ह्या झळकल्या जात आहेत. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू डाव्याशीच्या बराच बाहेर जाणारा. दोन्ही हा समांतर होत या ठिकाणी वाईडची खुणगाण पडते. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 22 धावांवर. 22 धावा धावफलकावर. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 90 धावांचा पाठलाग करताना डावातील 3रं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अर्थातच दर्शन बांदेकर. यावेळी एक वेगवान असा चेंडू वेगानं चकित केलं जातंय ते फलंदाज महादेवला. बाकीचे सोपस्कार यष्टिरक्षक पूर्णत्वास नेतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज दर्शन बांदेकर बहुधा आपल्या स्पेलच्या सांगतेसाठी सज्ज होतोय. यावेळी पंचांच्या उजव्या हाताकडनं तो मारा करतोय.
याही वेळी वेगवान पद्धतीचा चेंडू ज्या वेगानं आला त्याच वेगानं सीमारेषेच्या पलीकडे टोलवण्याचा प्रयत्न, मात्र डीप स्क्वेअर लेगला एका अप्रतिम अशा क्षेत्ररक्षणाचा दर्जेदार नमुना श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट संघाचा खेळाडू पेश करताना दिसतोय. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी तिसऱ्या पंचांची मदत ही घेतली जाते. मात्र निर्णय काहीही येवो, प्रयत्नांना दाद ही द्यावी लागेल क्षेत्ररक्षकाच्या, एवढं मात्र नक्की. पंच या ठिकाणी खातरजमा करतायत आणि खातरजमा केल्यानंतर 5 धावा वाचविण्यात क्षेत्ररक्षक यशस्वी ठरतोय. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होतोय. एक अप्रतिम असं क्षेत्ररक्षण आपण डीप मिड विकेटला पाहतोय ते श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं, आणि निश्चितपणे या बहारदार अशा क्षेत्ररक्षणाच्या प्रयत्नांना टाळ्यांच्या गजरात हे समर्पित केलं जात आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. या स्पर्धेच्या नियमावलीनुसार डावातील 4थं षटक हे पिंक बॉल षटक म्हणून गणलं जाईल, ज्या षटकामध्ये सर्व खेळाडू या ठिकाणी सर्कलमध्ये राहतील आणि ज्या षटकाला खेंडीर बॉईज मोरजिम चॅम्पियन्स षटक असं म्हटलं जाईल यात कोणतीही शंका नाही. आणि तेच महत्वपूर्ण षटक फेकण्यासाठी पाहायचं आहे कोण गोलंदाज श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट संघाच्या वतीनं सज्ज होतोय. पिंक बॉल षटक ओव्हरपिच चेंडू, सुरेख असा फटका, चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप लॉंग लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. आणि पिंक बॉल षटकाची सुरुवात एका उत्तुंग अशा षटकारानं होत 6 धावांना धावफलक वाढतोय. निश्चितपणे 6 धावांची महत्वपूर्ण भर ही पडते. अशा पद्धतीच्या फटक्यांची गरज असेल ती कांका क्रिकेट संघाला. गोलंदाजी मार्कवर यावेळी मात्र सुरेख असा चेंडू कमबॅक केलं जात आहे. मोठा फटका टोलवायचा होता, प्रयत्न फसतोय, बाकीचे सोपस्कार पूर्णत्वास नेले जात आहेत व चेंडू या ठिकाणी निर्धाव हा गणला जातोय. 29 धावा धाव फलकावर गडी बाद होत आहेत. ते अर्थातच 4 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी संघर्ष करताना दिसतोय तो भूमिका 11 कांका क्रिकेट संघ. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मंगेश या ठिकाणी सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू वेगाने येतोय. चेंडू मोठा फटका टोलवण्याच्या नादात फसतोय. यष्टिरक्षक दर्शन बांदेकर सुरेख यष्टिरक्षणाची चुणूक दर्शवतोय व एक मोठा फटका मारत संघासाठी मौलिक 6 धावांची भर घालण्याच्या प्रयत्नास मितेशच्या गोलंदाजीवर या ठिकाणी महादेवला झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर 5व्या कड्याच्या स्वरूपात जावं लागतंय. सांघिक 29 या धावसंख्येवर 29 धावा 5 कड्यांच्या मोबदल्यात 90 धावांचा पाठलाग करताना निर्णायक 7 षटकांच्या सामन्यातील सुरुवातीचं 4थं षटक हे प्रगतीपथावर. साफ निराशा केली ती रजत कुडाळकरनं, त्यानंतर धनेशनं, प्रितेशनं, वेदांतनं आणि या ठिकाणी महादेवनंही या ठिकाणी निराशा केली. मैदानाच्या बाहेर या ठिकाणी बाद होऊन ते परतलेत. काहीसा अडचणीत येतोय तो भूमिका 11 कांका क्रिकेट संघ. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा. गोलंदाज मितेश बांदेकर गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी सफलता प्राप्त करतोय व नवीन फलंदाज या ठिकाणी ऋतिक याची वर्णी ही मैदानावर लागते. तोडफोड फटकेबाजी करावी लागेल. निर्णायक अशा षटकामध्ये धावांचा रतीप हा घालावा लागेल. मात्र दुसऱ्या बाजूनं पहिल्या चेंडूवर जरी षटकार टोलवला गेला तरी दुसरा चेंडू योग्य टप्प्यावरचा, तिसरा चेंडू सफलता मिळवून देणारा, म्हणजे योग्य टप्प्यावरची गोलंदाजी आपण मितेशकडनं अनुभवतोय.
फुलटॉस मध्येचा चेंडू सरळरित्या टोलवला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेटला चौकारासाठी जातोय. आल्या आल्या 4 धावांनी म्हणजे चौकारानं ऋतिक हा फलंदाज स्वतःचं खातं खोलतोय, संघाला परावर्तित करतोय तो 33 धावांवर. अशाच पद्धतीच्या जोरकस मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज असेल भूमिका 11 कांडका क्रिकेट संघाला 90 धावांचा किल्ला गाठण्यासाठी, या स्पर्धेतील पहिल्या विजयाची नोंद करण्यासाठी. तर दुसऱ्या बाजूनं रोखावं लागेल अशा चेंडूंपासून ते गोलंदाज मितेश याला. ज्यावेळी चेंडू उजव्या बाहेर जाणारा वेगवान असा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा मानस पूर्णपणे असफल ठरतोय. बाकीचे सुपरस्टार यशरक्षक दर्शन बांदेकर याच्या करवी पूर्णत्वास नेले जात आहेत. 33वा धाव फलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. बहुधा शेवटचा चेंडू या ठिकाणी या षटकातील असेल. गोलंदाज मितेश याच्या करवी. मितेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं समोर आहे फलंदाज तो सायकला ऋतिक. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू ज्या वेगानं आला त्याच वेगानं डीप मिड विकेट सीमारेषा पार करत षटकारासाठी मार्गक्रमण करतोय. पिंक बॉल षटकाची सांगता उत्तुंग अशा षटकारानं होतंय. ज्या 6 धावांनी खेळ समाप्त होतोय 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज 39 धावा धाव फलकावर. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 90 धावांचा पाठलाग करताना धाव फलकावर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 39 धावा धाव फलकावर 90 धावांचा पाठलाग करताना म्हणजे अजूनही तब्बल 51 धावांची नितांत गरज आहे. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ. कालच्या दिवशी असे धक्कादायक निकाल हे लागलेले आपण या मैदानावरनं आपण पाहिलेच आणि त्याच धक्कादायक निकालाची पुनरावृत्ती करणारा हा सामना ठरेल. कांडका क्रिकेट संघ या ठिकाणी 18 चेंडूतील 51 धावांचं उद्दिष्ट पूर्ण करेल की दुसऱ्या बाजूने सुरुवातीच्या 4 षटकात जी लयबद्ध गोलंदाजी झाली त्या लयबद्ध गोलंदाजीनं या ठिकाणी 90 धावांपासून रोखण्यात श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट संघाला यशस्वीता प्राप्त होईल. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी बदल होतोय की नाही, गोलंदाज विकी सज्ज होतोय, मात्र समालोचन कक्षात निश्चितपणे बदल होतोय आणि या उर्वरित 3 षटकात काय घडेल काय बिघडेल, कोणता संघ विजयावर शिक्कामोर्तब करेल हे सांगण्यासाठी येत आहेत आपल्या समोर आमचे मित्र अशोक नाईक. थैंक यू समीर. ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल. तो अभी भी 3 ओवर बाकी है, 18 गेंदों का खेल और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 50 रन. अच्छा विकेट है, बैटिंग पिच है. इस विकेट पर रन बनते हुए कल से देखा गया है मैदान पर और देखना होगा विक्की अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने खेला. इस बार गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, मिड ऑफ पर फील्डर और इसी के साथ और एक कामयाबी मिलती हुई श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट टीम को. वे अनुकूल नाइक. थोड़ा सा दबाव मेरे ख्याल से है मिडिल ऑर्डर पर क्योंकि विकेटें खो चुके हैं. अब तक 6 विकेट वापस आउट होकर भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम के. टारगेट टोटल 90 रनों का और खेल जारी है 5वें ओवर का. थोड़ा सा हवा का झोंका मैदान पर कल के दिन में. यह गेंद थोड़ी नीचे रही, कट होकर बाहर की तरफ निकली. विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. थोड़ी सी जोखिम लेनी पड़ेगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट बढ़ता हुआ दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड पर. तो आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. चौके छक्के की सख्त जरूरत है भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम को. इस बार खेला कारपेट के साथ मिड ऑफ पर फील्डर और जब तक लॉन्ग ऑफ से आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में. आज 2 बल्लेबाजों ने बिल्कुल निराश किया.
दर्शन बांदेकर और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर, दोनों ने बिल्कुल निराश किया इस मैदान पर सभी दर्शकों को। बहुत कुछ दारोमदार थे उनकी बल्लेबाजी पर, लेकिन दोनों बल्लेबाज आज सस्ते में आउट होकर वापस। स्लोवर वन स्लॉक से भी इस बार डीप मिड विकेट पर, लेकिन लगभग गेंद चलेगी सी मार्का से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट मिले 6 रन स्कोर के खाते में भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम को। शॉट ऑन बॉल और एक बार बिल्कुल बेहतरीन छक्का, लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर। जिस शॉट की सख्त जरूरत थी वो 2 लगातार बेहतरीन शॉट बल्लेबाजी में, ऋत्विक के बल्लेबाजी में अब तक 3 छक्के 1 चौका लगाते हुए खुद के व्यक्तिगत 22 रन पर, और टीम का स्कोर हो चुका है 53 रन, 53 लॉस ऑफ 6 विकेट, 53 रन 6 विकेट पर। क्या मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, इस बार शॉर्ट कवर पर मौका मिला और इसी के साथ और एक विकेट चला गया, 7वां विकेट चला गया, 53 लॉस ऑफ 7 विकेट। डीजे चौका लगाया, 22 रन बनाए, आउट होकर वापस 6 गेंदों का सामना किया मैदान पर अनुकूल, और अनुकूल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। स्कोर 53 लॉस ऑफ 7 विकेट। नए बल्लेबाज मैदान पर मदार देसाई जा चुके बल्लेबाजी करने के लिए। 53 रन 7 विकेट पर 5 ओवर और आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी मैच का बाकी, और गेंदबाजी में परिवर्तन, नितिन आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। कमेंट्री बॉक्स में आगमन हो चुका है जो तीसरी आंख इस टूर्नामेंट के साथ सर सुजीत राणे, जिनका आगमन हो चुका है। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। आड़े बल्ले से खेला इस बार लॉन्ग ऑन पर, डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज। थोड़ा सा टारगेट बढ़ चुका है, हम जरूर जानकारी देंगे कितने गेंदे हैं, कितने रन बनाने हैं। जो स्कोर हो चुका है टोटल 55 रन। अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग अप पर फील्डर, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ 56 पर पहुंचा टोटल स्कोर। तो अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 34 रन, और 34 रन बनाने के लिए गेंदे बची है 10 चेंडू 34 धावा। ये लोअर फुल टॉस, लेकिन गति से बिल्कुल बीट हुए। थोड़ी सी स्लोवर 1 गेंद थी, जल्दी खेल बैठे और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। नहीं, इसका भाई डंबा है। स्लॉक से बहुत ही लाजवाब पॉइंट, स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे
28 रन, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यहां से लेकर कौन भी जीत सकता है ये मुकाबला। 8 गेंदों में 28 रन। शॉर्ट अंपल ऑन साइड पर, और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 7 गेंदों का खेल बाकी है, मैच का 27 रन। कल शाम के दौर के एक मुकाबले की जरूर याद बिल्कुल ताजा करूंगा। 6 गेंदे और 29 रन आखिरी ओवर, और सुपर ओवर का मुकाबला रहा था। सामने ये मौका बना था लगभग, लेकिन गेंद हाथों से फिसले। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ छठा, आखिरी ओवर का खेल बाकी है। 6 गेंदे और 6 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 27 रन। लास्ट ओवर 27, बिल्कुल समीर, जो फील्डिंग रही 5 रन बचाए। अगर मैच आखिरी गेंद पर चला गया तो वो शॉट बिल्कुल जो कि फील्डिंग का बिल्कुल कामयाब रहेगा ओम स्पोर्ट देवबाग मालवण क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन देखना होगा किस तरह से यह मुकाबला समाप्त होता है। जो जीतेगा वो खेलेगा रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम के साथ। और जैसे मैच, अगला मैच शुरू होगा, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे आप सब, आपके सामने वही साहब गोवासर, हरीश काकोड़कर। लेकिन देखना होगा यह मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है इन दोनों के बीच में। अंतिम ओवर और बॉलिंग मार्ग पर किरण धुरी ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। दबाव है, मैच का दबाव है, प्रेशर मुकाबला है बिल्कुल। आखिरी ओवर, गेंदबाज पर भी नहीं तो बल्लेबाज पर भी प्रेशर है इस मैच का। वाइड बॉल के साथ शुरुआत होती हुई, फुलर लेन की गेंद कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो। देखने होगा रनआउट का मौका, ओ निशाना नहीं लगा। कोशिश रही थी दर्शन बांधे करके, लेकिन इसी बीच 2 रन मिल गए। आने वाले 5 गेंदों का खेल मैच का अभी भी बाकी, और 5 गेंदों में 24 रन। 5 डिलीवरी 24 रन, 5 चेंडू 24 धावा सामना जिंकण्यासाठी। शॉर्ट अंपायर, वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। हमारे बॉल बॉयज आकाश और पर डंबा दिखा देते हुए गेंद को वापस लाने के लिए डीजे। इस शॉट के साथ एक बार फिर से भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम इस मैच में बिल्कुल वापसी करती हुई। किस तरह से होगा मुकाबला ये समाप्त। किरण धुरी अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने से दूर वाले छोर से, और सामने बल्लेबाज है अनुकूल। स्लोवर 1, इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी। बहुत ही शानदार थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, रनआउट का मौका बनेगा, देखना होगा। और इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की ओर। एक बहुत ही कीमती विकेट, इन मौके पर जब जरूरत थी अनुकूल को रुकना, तब अनुकूल वापस निकले। क्या होगा ये मैच का टर्निंग पॉइंट आने वाला समय बताएगा। लेकिन 8वां विकेट चला गया भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम का। डीजे तो समीर, आने वाली गेंद पर लगभग मुकाबला स्पष्ट होगा। लेकिन दोनों टीमों की मैच समाप्ति के साथ मैं थोड़ी सी चर्चा फील्डिंग की करूंगा। 3 गेंदे 17 रन। इस आने वाली गेंद पर बिल्कुल शॉट लगाना ही पड़ेगा बल्लेबाज को इस मैच में। फिर से स्लो ओवर 1, पुलर लेन की गेंद खेला इस बार लॉन्ग ऑन पर, फील्डर एक सिंगल और 1 रन के साथ। अब थोड़ा सा मैच फंस चुका है मैं कहूंगा। मैं चर्चा कर रहा था फील्डिंग की। आज भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं रही। 3 लगभग कैच छूटे शुरू में। फुल टॉस गेंद, शॉट, फील्डर है मौजूद, कैच, और इसी के साथ
और एक विकेट चला गया भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम का। आज दो बल्लेबाजों पर खास करके नजरें थी, एक रजत कुडालकर और दूसरा था दर्शन बांदेकर। दोनों का बल्ला नहीं बोला, लेकिन जिसका खिलाड़ी पर थोड़ी सी नजर दूर थी वही बल्लेबाजी में बिल्कुल छाप छोड़ी उन्होंने। शानदार बल्लेबाजी रही गॉडविन की, 37 रन बनाए, उससे पहले अच्छा साथ भी दिया महेंद्र ने 25 रन बनाकर। दोनों के बीच में एक बड़ी साझेदारी बनी और बड़े टोटल के साथ एक 90 का टारगेट, लेकिन सामने विकेटें बिल्कुल चली गई, साझेदारी बिल्कुल नहीं बनी भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम की ओर से। आइए प्लीज रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम कैप्टन आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर महाबलेश्वर पड़ते, आखिरी जोड़ी पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर। तो इसी के साथ इस मैदान पर सफर समाप्त होता। भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। श्री स्पोर्ट देवबाग मालवण क्रिकेट टीम जुड़ जाएंगे हमारे